Good morning students and hello friends. Welcome to my channel GP classes in gravity point. In a previous classes we will discuss about the parallel plate capacitor and different terms of related to parallel plate capacitor. For example, firstly we are placed the parallel plate capacitor in the air and vacuum. After that we fully filled with dielectric substance. After that we are partially filled of dielectric substance, and after that we are discussion about the partially filled with different thickness of dielectric substance. Okay, today we will discuss about the capacitance of the spherical capacitor. Firstly, what is the parallel plate capacitance of the spherical capacitor? Consider two capacitor of same central. Consider two capacitor of same central A and B, and radius is R1 and R2. The inner capacitor, inner spherical is B and outer is A. Consider, I write the language. Consider two spherical shell or sphere having different radius. One is R1 and second is R2 radius. The sphere A is R1 radius and sphere B is R2 radius. Okay, the sphere B is inner sphere and put in the sphere A. देखिए क्या लैंग्वेज देखिए मैंने. consider two sphere, one is A and second one is B. The radius of the sphere B is R2 and the radius of the A is R1. Radius of the sphere B is R2 and the radius of the sphere A is R1. So this one is, I make it again. देखिए this one is sphere B and this one is sphere A. Okay, the center of the both sphere are same, मतलब coincidental. The radius B is sphere B is R2 and the radius of A is R1. Okay, clear? How to make a capacitance? कैसे हम लोग कैपेसिटेंस इसे कंसीडर करेंगे, हम बनाएंगे. मैंने क्या किया, वी आर प्रोवाइड अ नेगेटिव चार्ज ऑन स्फीयर B. वी आर प्रोवाइड अ नेगेटिव चार्ज ऑन स्फीयर B. ठीक है, तो ड्यू टू द इंडक्शन मेथड the inner surface of the sphere E is positive charge. The inner surface of the sphere A is positive charge. क्लियर? क्या किया है देखो बच्चों, मैंने एक लिया था, क्या लिया मैंने, एक B स्फीयर है, उसकी रेडियस कितनी है R2, दूसरा स्फीयर क्या है मेरे पास A है, उसकी रेडियस कितनी है R1.
अब हमें इसे कैपेसिटेंस बनाना है। किस तरीके से पुट अप है कि एक बड़ा वाला स्पेयर लिया है, उसमें बीच में मैंने क्या रख दिया है, हाँ बोलिए, उसमें मैंने रख दिया है एक छोटा स्पेयर। कैसे? जैसे ये मार्कर है, दिखा देता हूँ, ये देखो, ये मार्कर है, बड़ा वाला होल है, रेडियस इज R1 और इसके अंदर ये वाला स्पेयर है ना बच्चा, ये वाला स्पेयर का इस तरीके से डालें तो बन गया ये हम लोगों के पास है। ये तो बन गया हमारे पास, क्या बना, स्फेरिकल। अब इसे कैपेसिटेंस बनाना है। अब दो का यूज क्यों लिया, क्योंकि दो प्लेट होना कंपलसरी है ना कैपेसिटेंस के लिए, तो एक पॉजिटिव है नेगेटिव। फिर मैंने क्या किया, वी आर प्रोवाइडेड नेगेटिव चार्ज, और कितना अमाउंट है इसका नेगेटिव चार्ज का, -q। कहाँ प्रोवाइड किया, इनर स्पेयर बी। तो ड्यू टू इंडक्शन मेथड जब मैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दूंगा तो सारे चार्ज जो है अट्रैक्ट होंगे ना, वो पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो किस पे आ जाएंगे, वो आएंगे हमारे पास आउटर इनर सरफेस ऑफ स्फीयर बी, और बाहर वाले सरफेस पे क्या बचेंगे, नेगेटिव चार्ज। पर मुझे तो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ग्राउंड, then the outer surface is a grounded. तो write the language, I write it, what is, देखिए, provide a negative Q charge on the inner sphere B, then due to induction method plus Q charge develop on inner surface of the sphere A। देखिए क्या किया मैंने, प्रोवाइड किया है -q चार्ज, प्रोवाइड -q चार्ज इनर स्पेयर बी स्पेयर पे क्या किया, -q चार्ज हम लोगों ने प्रोवाइड किया है ड्यू टू इंडक्शन मेथड, प्लस q चार्ज कहाँ डेवलप्ड होगा, इनर सरफेस ऑफ द स्पेयर ए, एंड -q चार्ज प्रोड्यूस outer surface of the B sphere, clear, of the sphere A. So outer surface is earthed। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को क्या बनाना था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लैंग्वेज इज क्लियर, ओके। नाउ मैथमेटिकल राइट करते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। पोटेंशियल किसके लिए चलते हैं, ड्यू टू स्पेयर बी कितना होगा, फॉर चार्ज -q कितना होगा, VB इज इक्वल टू K -q, what is the radius is R2 upon R2, means -kq upon R2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू स्पेयर ए इनर सरफेस। इनर सरफेस की भी बात करें तो कितना होगा, VB डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और किसकी वजह से, ये स्पेयर बी है लेकिन किस पे, इनर सरफेस ऑफ ए स्पेयर, VB इज इक्वल टू KQ अपॉन R1, इक्वेशन 2। देखिए कितना होगा, इसके लिए कितना होगा, रेडियस ये रहा हमारे पास, और -q चार्ज है स्पेयर बी के लिए, तो कितना होगा, -KQ अपॉन R2, दिस वन इज R1, एंड ड्यू टू द स्पेयर बी के लिए कितना होगा हम लोगों के पास, इनर सरफेस पे कितना होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा इनर सरफेस के लिए, यही तो होगा R1 हो जाएगा, तो कितना लिखा हम लोगों ने, KQ अपॉन R1, ओके। टोटल पोटेंशियल बिटवीन
ए एंड बी। कितना होगा टोटल पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी? V इज इक्वल टू VB प्लस VB डैश। तो VB प्लस VB डैश, पुट द वैल्यू ऑफ VB और VB डैश, व्हाट इज द वैल्यू? देन V इज इक्वल टू KQ अपॉन R1 minus KQ upon R2. What is common? KQ common, 1 upon R1 minus 1 upon R2. Clear? LCM लीजिए, KQ R2 minus R1 upon R1 R2. Clear है? Any doubt? अब निकालते हैं हम लोग ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटेंस। ओवरऑल पोटेंशियल, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर। ओवरऑल कैपेसिटर तो कितना होगा? V आउटर माइनस V कर दो, इसको लिख रहा हूं मैं, इसे लिख रहा हूँ इनर, इनसे ले लेते हैं। तो V इज इक्वल टू कितना होगा? V आउटसाइड माइनस V इनसाइड। तो इन दोनों के बीच का आ जाएगा ना, यहाँ वाला पोटेंशियल आ जाएगा। कौन सा पोटेंशियल आएगा हमारे पास? दिस वन इज पोटेंशियल डिफरेंस, जो ये आएगा। कोई डाउट है? नहीं है ना? और कितना होता है हमारे पास? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चलते, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे, तो दिस वन माइनस दिस वन होगा। अच्छा, V आउटसाइड तो हमारे पास अर्थ है, अर्थ मतलब पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। देन कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 माइनस KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। कोई डाउट है? माइनस साइन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। देन V इज इक्वल टू KQ व्हाट इज R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। We find out the capacitance. So what is the formula? We know that what is C is equal to Q upon V. We know that C is equal to Q upon V. Put the value of V. Put value of V in equation 4th from equation 3rd. Put the value of V in equation 4th from equation number 3rd. Then C is equal to Q KQ R1 minus R2 upon what is R1 R2. Okay, cancel out Q to Q. Then C is equal to what is R1 R2 upon K R1 minus R2. What is K? K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Then formula is 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R1 minus R2. Clear? This formula is the for vacuum and air. किसके लिए ये? Vacuum and air. If the spherical capacitor placed in a medium ER for medium, then what we done? C medium is equal to 4 pi epsilon naught epsilon R R1 R2 upon R1 minus R2. Any doubt? Clear? ओके, इसमें से एक स्पेशल केस। ओके, अब एक केस डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। और ये स्पेशल केस कई बार पूछ लिया जाता है, क्या कर रहा हूँ? इफ R1 आउटर स्पेस इज इनफाइनाइट एंड R2 इज इक्वल टू, क्या पुटअप कर दूं मैं? R। तो व्हाट इज फॉर्मूला? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R। क्लियर और नॉट? अब डिवाइडेड R1, दिस वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय R1। क्यों? अगर नहीं रखूंगा, पहले वैल्यू रख दूंगा तो आंसर हम लोगों के पास इनफाइनाइट रहेगा। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
R1 रखा तो कैंसिल आउट, यहाँ कितना बचेगा R2 और यहाँ बचेगा R1 अपॉन R1 माइनस R2 अपॉन R1। क्लियर? अच्छा, C इज इक्वल टू 4/ε0 R2 अपॉन 1 माइनस R2 अपॉन R1। पुट वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या रख रहा हूँ मैं, R1 और R2 की वैल्यू को पुट अप कर रहा हूँ। 4/ε0 R1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिट, पुट वैल्यू में इन्फिनिट कितना हो जाएगा 0 में कितना जाएगा 4/ε0। याद आ रहा है कि ये कोई फॉर्मूला क्या किया मैंने कि मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर की वैल्यू थी ये, उसमें R1 को इन्फाइनाइट, R1 का मतलब है ये वाला जो स्फेयर है आउटर स्फेयर, वो कहाँ लेके हम लोग इन्फाइनाइट पे बहुत दूर लेके, तो हम लोगों के पास ओनली R2 बचा और R2 को मैंने क्या कंसीडर कर लिया ये कि ये आइसोलेटेड स्फेयर नहीं है क्या, आइसोलेटेड स्फेयर। तो क्या कर रहे हैं स्पेशल केस में हम लोग किससे कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर से हम लोग ने किसकी भी वैल्यू फाइंड आउट की है आइसोलेटेड स्फेयर की। कब होता है कंडीशंस याद रखना इंपॉर्टेंट, व्हेन कई बार पूछ लेते हैं कंपटीशन में पूछ सकते हैं कि हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर कब आइसोलेटेड में कन्वर्ट होगा, आउटर स्फेयर, जब हमारा आउटर स्फेयर क्या हो इनफाइनाइट पे, आउटर स्फेयर जब हमारा इनफाइनाइट पे होगा, आउटर स्फेयर जब हमारा इनफाइनाइट पे होगा उस कंडीशन पे हमारा ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैपेसिटेंस बिहेव लाइक आइसोलेटेड कैपेसिटर। बात बतेगी आगे समझ में, ठीक है? ओके, टुमारो वी विल सॉल्व आउट द सम न्यूमेरिकल अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। थैंक यू वेरी मच।